important thing in a believer's life? What is the most important thing? आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है एक विश्वासी के जीवन में? There are many things that we can say, like prayer, we can say giving, coming to church and all of that. हमारे हिसाब से या तो प्रार्थना हो सकती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, या फिर देना हो सकता है, या फिर कलीसिया आना, or fasting and so on. There can be so many things which are very important, but what is that root from which every other branch comes out? हम ये भी सोच सकते हैं कि उपवास या फिर इत्यादि ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन असल में वो जड़ क्या है जिससे कई सारी शाखाएं निकलती हैं? Amen. Amen. And if you can pay attention to that, अगर हम उस जड़ की ओर अपना ध्यान दे सकें, the most important thing in your life is believing right. सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में सही विश्वास करना. If your believing is wrong, then your praying will be wrong. अगर हम मानते सही नहीं है, विश्वास सही नहीं करते हैं, तो हमारी प्रार्थना गलत होंगी. If your believing is wrong, then the reason why you come to church will be wrong. अगर हमारा विश्वास ही गलत बात पर टिका हुआ है तो हमारा कलीसिया आने का कारण भी गलत है. If your believing is wrong, then the reason why you give will be wrong. अगर हमारा विश्वास गलत है तो फिर हम जिस कारण से देते हैं परमेश्वर के राज्य में वो भी गलत है. Are you guys with me? आप समझ रहे हैं? That's why, hear this, if you want to write it down. The most important thing, this thing is of paramount importance. What you believe about God. Your entire life revolves around what you believe about God. आप ध्यान से Not सुने. what you do, but what you believe about God. आप इस बात को ध्यान से सुने. अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए. सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसपे आपका जीवन, जिसके इर्द गिर्द मंडरा रहा है, वो ये है कि आप परमेश्वर के बारे में क्या विश्वास करते हैं. आप क्या करते हैं उस पर निर्भर नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर पर क्या विश्वास करते हैं. Because if it was about fasting and praying, I don't think everybody in the church you would see them prospering. अगर बात सिर्फ उपवास और प्रार्थना करने की होती तो शायद हम कलीसिया में हर किसी को समृद्ध होते हुए देखते. Because every church, every Christian prays, every Christian gives, every Christian fasts. क्योंकि हर एक मसीही जो है वो प्रार्थना करता है, वो उपवास करता है, वो देता है परमेश्वर के राज्य में. But because so many have a wrong belief system, लेकिन कई लोगों का विश्वास की जो प्रतिक्रिया है, जो उनका विश्वास का सिस्टम है, वो गलत है. system would be pranali. प्रणाली. It's a system. ये जो विश्वास की जो प्रणाली है वो गलत है. It's a mindset. जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो गलत है. If your belief system is wrong, everything you do you know everything that you're doing right now is coming out of that belief system. तो हर कुछ आप जो अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं वो उस विश्वास की प्रणाली से उत्पन्न हो रहा है. And that's why there are many, if you hear people say, okay pastor, what should I do that I will get out of my debts? कई लोग आते हैं, कहते हैं पास्टर जी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने कर्जे से बाहर निकल सकूं. Give me a 3-step formula. मुझे 3 ऐसे कदम बताओ जो मैं करूं और कर्जे Give से me बाहर. the secret ingredient. वो मुझे रहस्य बता दो जिससे मैं कर्जे Give से me बाहर. the anointing oil. Give me something that will bring me out of my debts, out of my problems, out of my sicknesses. या तो मुझे अभिषेक का तेल दे दो, या ऐसा कुछ तरीका बता दो कि मैं अपने कर्जे से, अपनी तकलीफों से, अपनी बीमारी से बाहर आ जाऊं. They are ready to do something. सब तैयार हैं कुछ करने के लिए. Come on, tell your neighbor, it doesn't start from doing, it starts from believing. अपने पड़ोसी से कहें कि करने से नहीं परंतु विश्वास से उत्पन्न होता है. Trying to do right without believing right first will not produce any fruit. अगर हम पहले सही कार्य करने में लग जाते हैं बिना सही विश्वास करे, वो सही फल नहीं लाएगा. Amen? We are going after the external first. God is saying, no, it doesn't start from the external. It starts from your heart. हम अपने बाहरी
वातावरण को पहले बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है पहले बाहर का नहीं, अपने दिल को बदलो। So I want to ask you this question tonight. मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ आज की रात, What do you believe about God? तो परमेश्वर के बारे में आप क्या विश्वास करते हैं? You'll say, yeah, I believe God is God. हम कहेंगे परमेश्वर तो परमेश्वर है, मैं ये विश्वास करता हूँ। Even devil believes God is God. लेकिन शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। That's not the kind of faith that pleases God. You know, Yes. Bible says, do you believe that God exists and God is one? You believe well, for even demons believe that and tremble. Do you know even demons believe? The Bible says that. वचन इस प्रकार से कहता है कि या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर एक है, और शैतान भी ऐसा विश्वास करते हैं और वो कांपते हैं। तो आप जानते हैं कि शैतान और दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। Oh yes, Pastor, I believe God is all powerful. Yeah, even Satan believes God is all powerful. हाँ पास्टर जी, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर महासामर्थी है, लेकिन शैतान भी ये विश्वास करता है कि परमेश्वर महासामर्थी है। What is at your core? If God looks at your heart, if He goes, His eyes penetrate to the depth of your heart. I'm not talking about what you do. I'm talking about the content of your heart. What is it that you believe about Him? हमारे दिल के एकदम अंदरूनी गहराई में अगर परमेश्वर आज झांक के देखे, तो उसमें अगर हम बता सकें क्या विश्वास करते हैं, परमेश्वर उस पर ध्यान करता है। You know, when Jesus was walking on the face of the earth, यीशु जब पृथ्वी पर चल रहा था, and a leper comes to him, his body parts are falling apart, his skin is peeling off. एक कोढ़ी उनके पास आता है, उसकी चमड़ी जो है वो गिरी जा रही है, पिघल रही है कोढ़ के कारण। He says, Son of God, have mercy on me. वो कहता है परमेश्वर के पुत्र मेरे ऊपर करुणा कर, दया कर। Jesus didn't say, okay, go and fast for 40 days. यीशु ने ये नहीं कहा कि जाओ 40 दिन उपवास करो। He didn't say, well, you need to give more. उसने कोढ़ी से ये नहीं कहा कि अरे तुम्हें बहुत ज्यादा देने की आवश्यकता है परमेश्वर के राज्य में। You know what he did? ऐसा नहीं। What was the question that Jesus asked him? यीशु He ने said, do you? यीशु ने उस कोढ़ी से क्या सवाल पूछा? क्या तुम विश्वास करते हो? Do you believe that I can do this for you? Because at this question lies your answer. यीशु ने ये सवाल पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? क्योंकि इस सवाल पे आपका उत्तर टिका हुआ है। Many times, you know, oh, Pastor, I'm doing everything. Pastor, I'm coming to church. We are all the time analyzing our doing, but God is checking our believing. हम कई बार आके कहते हैं पास्टर मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हम कई बार यही सोचते रहते हैं, इसी बात पर तर्क वितर्क करते रहते हैं कि मैंने क्या किया, लेकिन परमेश्वर देखता है कि हमारा विश्वास की प्रणाली क्या है। Who do you believe God to be? हम क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कौन है सच में? Some people come to church because they just want to get healed. So they see Jesus as a doctor, and He is. कई लोग कलीसिया सिर्फ चंगाई प्राप्त करने के लिए आते हैं और वो यीशु को एक डॉक्टर के समान देखते हैं, और यीशु सच में चंगा करता है। The Bible says that He is our great physician. बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वो हमारा महान चिकित्सक है। He is. वो है। You'll come to church believing that you'll get healed. अगर आप कलीसिया इस विश्वास के साथ आते हैं कि मैं चंगा होऊंगा, तो आप चंगाई पाएंगे। But that's all. You'll get healed. लेकिन हमारा विश्वास वहीं पर, Because you only believed for a healing. क्योंकि हमने सिर्फ चंगाई के लिए विश्वास किया, तो वहीं पर हमारी विश्वास की प्रणाली रुक जाती है। Some people come to Jesus as an immigration officer. I need a visa to go to Canada or Australia or wherever. And they sometimes they get a visa, you know. But that's all that God is for them. Somebody who gives them a visa, or somebody who gives them a healing, or somebody who gives them a job. Who do you believe that Jesus is for you? Not who He is, but who do you believe? Because what you believe about Jesus, He is that for you. तो कई लोग यीशु के पास एक इमिग्रेशन ऑफिसर के समान आते हैं कि वो उससे वीज़ा पालें ताकि वो यूएस या कनाडा जा सकें। कई लोग उसके पास नौकरी के लिए आते हैं, अपनी चंगाई के लिए आते हैं।
तो हम किस बात में सच में विश्वास करते हैं? वो सच में है कौन? क्या इस बात पर विश्वास करते हैं या हमारे जीवन में कुछ हो जाए इसलिए विश्वास करते हैं? Your entire life, many of you would not realize it, is revolving around your belief system. अगर हमने अभी तक ये बात समझी नहीं है, लेकिन हमारा संपूर्ण जीवन हमारी विश्वास की प्रणाली के आसपास ही घूम रहा है। We are ready to do. हम जल्दी से करने को तैयार हैं, But God is saying, no, no. लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं तुम्हारे करने में दिलचस्प नहीं हूं। Trying to do right before believing right is religion. हमारी इस बात की कोशिश कि मैं कुछ सही कर सकूं, सही विश्वास करने से पहले, वो धर्म है। वो धर्म की आत्मा से उत्पन्न होता है। Amen.